चलिए शुरू करें। हाँ, तो अपना डिस्कशन जो चल रहा था वो था रिगार्डिंग दिस वन। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो पार्ट, हाँ, एक पार्ट बचा था जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पार्ट था। ऑन कर देंगे? वाह, बढ़िया है। वाह, 26। ये तो गरम गरम हवा निकलेगा नेचुरली। रूम टेम्परेचर तो उससे कम है, इसीलिए वो बोला कि एसी चला दीजिए। चलो हम लोग शुरू करें। अब हम लोग आज जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बात करेंगे माय डियर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो व्हेन वी टॉक ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक रिएक्शन, उसके बारे में पिछले दिन मैंने आपको बताया था, दैट इज फिनाइल एलानिन। दिस in presence of an enzyme that is phenylalanine hydroxylase that will convert into homogenistic acid. Homogenistic acid is also called L-captone. It is also called L-captone. Homogenistic acid in presence of an enzyme, homogenistic acid oxidase. In presence of an enzyme, homogenistic acid oxidase. Homogenistic acid oxidase. Homogenistic acid oxidase. It will give rise to, yes, it will give rise to tyrosine, है ना? And tyrosine in presence of an enzyme called tyrosinase, it will give rise to melanin. ठीक है? So ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को जरा ध्यान से देख लीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है? तो phenylalanine in presence of phenylalanine hydroxylase gives you homogenistic acid, which is also called L-captone, and homogenistic acid in presence of homogenistic acid oxidase gives you tyrosine, और tyrosine in presence of tyrosinase gives you melanin. ठीक है? এটা হলো सीक्वेंस। अब इसमें आप देखिए कंडीशंस, 3 कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ phenylalanine hydroxylase, alanine hydroxylase gene is inhibited, अगर इसका जीन इनहिबिटेड हो जाएगा देन होमोजेनिस्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट? तो सो phenylalanine percentage in the blood will increase. In this case, phenylalanine percentage, phenylalanine in blood will increase. ठीक? Or phenylalanine in the blood will increase. Phenylalanine is also called phenyl pyruvic acid. Phenylalanine is also called phenyl pyruvic acid. देखो पाइरुवेट का अगर फॉर्मूला आप देखते हो, स्ट्रक्चर अगर देखते हो, तो COOH, C डबल बॉन्डेड O, CH3, दिस इज पाइरुवेट। और इसी में एक हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप लगा दोगे तो दैट विल बी फिनाइल पाइरुविक एसिड। समझ में आया? सो दिस इज पाइरुविक एसिड। और इसमें अगर आप इसको CH2 करके, इधर से CH2 करके एक फिनाइल रिंग लगा दोगे, सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट phenylalanine. तो phenylalanine कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी फिनाइल पाइरुविक एसिड। तो मैंने आपको यह बताया कि phenylalanine कैन बी फिनाइल पाइरुविक एसिड। सो इन दिस कंडीशन
phenylalanine blood will increase. Therefore, phenyl pyruvic acid will also increase, है ना? And phenyl pyruvic acid, this will accumulate in the blood. Progressively, it will have two things. Number one, it will accumulate in the joints. It will accumulate in the blood, followed by in the joints. It will be present in the urine. That is phenylketonuria. At the same time, this will also deposit in the brain. This will get into the cerebral circulation, and it will damage the brain. And it will also result in phenyl pyruvic idiots. Am I clear? So दो conditions होंगे इससे. तो phenyl pyruvic acid accumulates in the blood, in the joints, followed by phenyl pyruvic acid in the joints increases, accumulates in the joints. At the same time, another thing happens, that is phenyl pyruvic acid enters the cerebral circulation. কি করে cerebral circulation এ যাবে? Crosses the blood-brain barrier, BBB, and ultimately what will happen? This will damage the brain. And that will result in phenyl pyruvic idiots. Okay. On the other hand, when phenyl pyruvic acid in the joint increase, they can also get accumulated in the kidney. So they will enter into the renal circulation. में आएगा, and they are eliminated via urine. So this condition is called phenylketonuria. तो इसमें क्या होता है? This is one thing. Phenyl pyruvic acid accumulates in the urine. वो तो निकलेगा ही. And due to the formation of phenyl pyruvic acid, increase in the phenyl pyruvic acid in the blood, the ketone bodies are also formed. Kidney damage होता है, and therefore ketone bodies are also formed. समझे ना? In the blood, increase in phenyl pyruvic acid, this will also increase the formation of ketone bodies in the blood. And this ketone body will also come in urine. समझे? And that is phenylketonuria. बुझा था? पढ़ लो. ये समझ में आ गया? So this is the cause, but the effect of the absence of phenylalanine hydroxylase enzyme. Clear? So it's a genetic disorder. कोई भी एंजाइम का अगर एब्सेंस हो रहा है, तो वो किस लिए हो रहा है? Because the gene which is synthesizing the enzyme is being inhibited. Gene inhibited होंगे तभी तो enzyme synthesis decrease हो जाएगा या तो absent हो जाएगा, है ना? वही हो रहा है. On the other hand, you see homogenistic acid oxidase, ये enzyme. If this enzyme is inhibited, if the gene synthesizing the enzyme is inhibited, तब क्या होगा? अगर the gene synthesizing this enzyme is inhibited, तब क्या होगा? Then what will happen? Alkaptone percentage in blood will increase, definitely. Therefore, homogenistic acid or alkaptone in the blood will increase. So homogenistic acid or alkaptone in the blood will increase. और अगर homogenistic acid increase हो गया, then what will happen? This alkaptone or homogenic acid will come in urine. So it will enter into renal circulation, enter into the renal circulation, और renal circulation में जाके it will come in urine. So presence of homogenistic acid or alkaptone in urine, है ना?
इन दिस कंडीशन क्या होगा, अगर ये यूरिन में प्रेजेंट हुआ, देन व्हाट विल हैपन, दिस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे यूरिनेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, तुरंत ये ब्लैक कलर हो जाता है. सो इट इज कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज और एल्केप्टोन्यूरिया. समझे ना? सो दिस होमोजेनिस्टिक एसिड इन कांटेक्ट विद एयर आफ्टर यूरिनेशन, the homogenistic acid when comes in contact with air turns black colored, है ना? And this condition is called black urine disease और alkaptonuria. तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज और प्रेफरेबली कॉल्ड एल्केप्टोन्यूरिया. एल्केप्टोन्यूरिया. Am I clear, my dear students? Is it okay? हर किसी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये याद रखना है my dear students. ठीक है? केनेथ कैसा है? कितना ठंडा है उधर, लेकिन तू जा नहीं पा रहा है. ठंड के टाइम में जाने का मजा ही कुछ और है. कौन सा जगह था तुम्हारा? कालिम्पोंग में था ना? हाँ, क्या शानदार जगह है. कि भाग्यलक्ष्मी, क्या चल रहा है तेरा? तू तो एक दिन प्रेजेंट होती है और 3 दिन एब्सेंट. लास्ट दिन की गतकाल छिलो, মানে फ्राइडे छिलो ना सैटरडे छिलो? ও ফ্রাইডে অ্যাবসেন্ট ছিলিস? ওই তো একদিন প্রেজেন্ট আর 3 দিন অ্যাবসেন্ট. 1:3 রেশিওতে চলে তোর, তাই না? বল 1:3. উইকে 2 দিন প্রেজেন্ট হলে তো মোর দ্যান এনাফ. মানে তখন তো মানে আমাদেরকে পার্টি দিতে হবে. আর বাবা সাবধান, इसका कैटरपिलर का, तुम पत्ता खाओ, तुम पानी मत पियो, है ना? चलो टाइरोसिन. तो अब क्या होगा, ये होमोजेनिक टाइरोसिन हो गया. टाइरोसिनेज एंजाइम का इनिबिशन अगर होगा तो टाइरोसिनेज एंजाइम का जो जीन होता है बेटा, if the gene is inhibited, if the tyrosinase gene is inhibited, then what happens, my dear students? Is inhibited, then what happens? Melanin synthesis is inhibited, and that causes albinism, है ना? Therefore melanin synthesis is absolutely inhibited, and that will result in a condition called albinism. तो my dear students, 3 diseases हम लोगों ने रेफर कर लिया with respect to this, है ना? So these are the 3 diseases that we have discussed right now. ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो ये these are the 3 diseases that we studied right now. अब इसके बाद एक और जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, that is called infantile amaurotic idiocy. उसके बारे में पढ़ेंगे जरा. ओ, उसको घुमाना है उधर. एक सेकंड, थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट बोर्ड को. दैट इज इन्फेंटाइल एमोरोटिक इडियोसी. इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग. तो एक डेफिशिएंसी ऑफ द जीन, एक और, हाँ, तो उधर तो हो गया. एक और डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, beta N acetyl hexosaminidase, है ना? ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का इनहिबिशन क्यों होगा? अगेन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ द जीन्स, है ना? सो ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ इट्स जीन. ठीक, তো ডেফিসিয়েন্সি অফ দি এনজাইম বিটা এন অ্যাসিটাইল হেক্সোজামিনিডেজ. এটা পড়েছিলিস কোটাতে এই নামটা? এই ডিজিজটা পড়েছিলিস, ইনফ্যান্টাইল অ্যামোরোটিক ইডিওসি? টেসএক্স, এটাই টেসএক্স. इट इज टेसएक्स. এটা পড়াতে एवरी स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी दिस. एलन में ये पढ़ाया जाता है, इसीलिए ये एक्चुअली एलन के मॉड्यूल का है ओरिजिनली. जैसे ये सीक्वेंस एकमात्र एलन ने ही सबसे पहले ये सीक्वेंस इस तरह से पढ़ाया. एकमात्र सबसे पहले एलन के मॉड्यूल में ही यही सीक्वेंस है. ये भी
तो deficiency of the enzyme in beta N acetyl hexosaminidase enzyme due to the inhibition of the gene will result in what? With improper fat metabolism. হ্যাঁ বল কি বলছিস? হ্যাঁ এটা কেন? Due to improper fat metabolism, because the enzyme is responsible for fat metabolism. तो अगर वो एंजाइम का इनहिबिशन होता है बेटा, then what will happen? Improper fat metabolism होगा, और अगर improper fat metabolism होगा तो fat accumulation है ना, abnormal fat accumulation, normal नहीं, abnormal fat accumulation in the blood, इसके साथ साथ improper fat, presence of abnormal fat in the brain lipids का degeneration होता है. So this accumulates in the blood, followed by degeneration of the brain lipids, and इसके साथ साथ and the lipid of myelin sheath. तो myelin sheath में भी degeneration होगा, myelin sheath का भी degeneration होगा. At the same time ब्रेन लिपिड जो है, माने उसको सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं. तो एनीवे तो सेरिब्रोसाइट्स जो होते हैं ब्रेन लिपिड्स होते हैं, तो उसका डिजेनरेशन होता है, एंड दैट विल आल्सो रिजल्ट इन कंडीशन कॉल्ड टे-सैक्स डिजीज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इनफैंटाइल কি করিস তোরা? পুরো ক্লাস খালি ব্যাক পড়ছে, বই পড়ছে, সব পড়ে যাচ্ছে. ইনফ্যান্টাইল অ্যামাউরোটিক চালায় আমিও ভুলে যাব, ভুল লিখে ফেলছি. অ্যামাউরোটিক AMOUROTIC ইডিওসি. ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যানাদার ডিজিজ. समझ में आया? আরে ব্যাগটাকে ওখানে রাখ না, কোলে নিয়ে বসে আছিস, দে আমায় দে. নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে না এটা. চল इसको देख. समझ में आया? So deficiency of the enzyme beta N-acetyl hexosaminidase, this is the name of the enzyme. That enzyme is responsible for fat metabolism, my dear. This is the enzyme. This enzyme is responsible for lipid metabolism. This enzyme is responsible for fat or lipid metabolism. ठीक है? So this is it. Genetic disorder এগুলোই করে নাও. আর তোমাদের gout একটা সিলেবাসে আছে. Gout is in your syllabus. Gout is also an enzymatic disorder, माने genetic disorder. आप लोगों को लगता है कि gout वो accumulation of calcium carbonate crystals in the joints, लेकिन वो लिखा है NCERT में, but that is also a genetic disorder. क्योंकि calcium carbonate accumulation कब होता है? Due to improper purine metabolism. है ना? तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का उसका जो एंजाइम है, वो एंजाइम इज इनहिबिटेड एंड दैट मींस सिंथेसिस इज इनहिबिटेड. तो इसीलिए इम्प्रॉपर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म मैंने लिखा था, आप देखोगे इम्प्रॉपर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. तो उसके लिए यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट इन द जॉइंट, वो भी एक एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर, लेकिन उतना एक्सटेंशन तक नहीं जाएगा. सो इतना ही एनफ है. हालांकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. विटिलिगो एनसीईआरटी में है ही नहीं, सोरियासिस एनसीईआरटी में है ही नहीं, SLE एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन उसका चर्चा हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है. सो इट्स वेरी अच्छा. আরেকটা কথা, তোমাদের গ্রুপে আমি দিইনি বোধহয় ওটা, না এটাও দিয়ে দিই, এটা শেয়ার করে দে তো সবাইকে. हाजी আনমিউট কিসকো? ও कैसे আনমিউট যেন কি ছিল সিস্টেমটা ভুলে গেছি তো. এই নাম কোথায়? নাম দেখে দেখে করেছিল তো, নাম তো নেই এখানে. আরে স্টেজ তো বাচ্চাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তবে তো হবে. এনেবল চ্যাট করে দেবো. আচ্ছা এনেবল চ্যাট করার পরে কি? আরে ভাই ওদের জিজ্ঞেস করছি, তার আমি তো জানি না. I told them to do it. एक क्या छो सर वो, हाँ ब्रिंग टू द स्टेज पहले से ही कर दीजिएगा. क्या प्रोसेस है? नाम नहीं दिखा रहा है. आप लोग तो कल नाम दिखाया था. इतना कुछ मुझे थोड़ी ना पता है. अच्छा वो जो चीज शेयर करना है बेटा, वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं. वो एक जबरदस्त चीज है, सीबीएसई ने दिया है ना.
क्लास 12 का सिलेबस के ऊपर वो है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं माय डियर। हाँ हाँ शेयर हो गया, हाँ পাঠিয়ে দিয়েছি তো, ঠিক আছে। হ্যাঁ মানে ওটা আমরা নিজেরা শেয়ার করেছিলাম। हाँ हाँ बोल। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो देख लिया ना, ठीक है, जरूरत नहीं, कल मिल गया ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसको ध्यान से देखना बेटा। और उस मैंने अप्रोक्सीमेटली इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब मान के चलो कि 7-8 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये ज्यादा होगा 10% to 40% प्रोग्रेसिवली। तो मान के चलिए मतलब 2024 से अगर कंसिडर करें, ये 25 का एग्जाम है, मतलब 20% या 30% अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ 90, तो 20% भी आ गया तो 18 क्वेश्चन। बॉटनी एंड जूलॉजी मिला के 18 क्वेश्चन इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो वैसा क्वेश्चन अगर आएगा मतलब केस दे देगा आपके सामने, और उस केस के ऊपर मतलब जो हॉट होता क्वेश्चन होता है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो वैसा ही हाँ हाँ एनालिटिकल क्वेश्चंस है, हॉट्स है, जो भी कहो आप उसको। तो बायोलॉजी में अगर 9 क्वेश्चन ऐसा आ गया तो मतलब तहलका हो जाएगा, मैं सीधा बोल रहा हूं आपको। और ये जेई मेंस आ रहा है, जेई मेंस में भी आपको दिख जाएगा वो, जेई मेंस में तो यही पैटर्न ऑब्टेन होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में एकदम जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, और उसमें देयर इज एवरी चांस दैट द स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक। वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और उस तरह का क्वेश्चन हमेशा जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं उस पे एनालिटिकल थॉट्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो लेवल पे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को उस लेवल पे पढ़िए। जो नोट मेरा, तो नोट मतलब मेरा बोर्ड वर्क ही नोट है मेरा, तो उस नोट को जरा ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड वर्क को ध्यान से देखिएगा। whenever I have done any board work, whenever I have taught any topic सब टॉपिक, तो उसको ध्यान से देखिए, उससे क्वेश्चंस हमेशा आपको मिलेंगे। जब एसएलई का सवाल कभी नहीं पूछा गया था तब भी मैं एसएलई पढ़ाता था, आज से नहीं, बहुत पुराना चीज है ये। तो एसएलई मतलब लूपस डिजीज कहा जाता था उसको, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि जैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन हो सकता है। कितने सारे ऑटो इम्यून डिजीज मैंने पढ़ाया था, 11-12 ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ाया था, वो सब ऑटो इम्यून डिजीज। अच्छा तुम लोग को बताया था ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज, ग्रेव्स डिजीज इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज, बताया था ना। उस 11 वाला पॉइंट, क्या 12 पॉइंट में नहीं था वो ऐड कर देने के लिए कहा था मैंने, है ना। ग्रेव्स डिजीज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। तो एनीवे ये भी हो गया। तो इसका फोटो ले लीजिए बेटा, ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ কি হলো, अनम्यूट করেনি क्या এখনো? सर तो चले गए, अनम्यूट नहीं हुआ बेटा। आप लोग अनम्यूट हुए नहीं? नो। अच्छा देखिए, ब्रिंग टू स्टेज अब हो गया। आप काट दिया, ब्रिंग टू स्टेज नहीं हो रहा है। Yes, sir, not done. तो होएगा जो, हाँ तो मैं ही कर दिया आज, देखो मैं ही कर दिया आज। चलो तो एक बार टाइप कर दीजिएगा तो आपका नाम आ जाएगा ना, उसको क्लिक करके मैं ब्रिंग टू स्टेज कर सकता हूँ, है ना। इसका फोटो लेके डाल दे बेटा। सही से लिया तूने, बैठे बैठे फोटो हो गया तेरा, दिखा मुझे। फाकीबाजी करता है सिर्फ। हाँ इसको सही से काट, क्रॉप कर सही से। हाँ पैरालिसिस तो हो गई, ब्रेन में है तो वो पैरालिसिस तो होगा ही। अच्छा पैरालिसिस लिख दे। इट क्या, हाँ सर तो व्हाट इट कैन ऑल्सो कॉज पैरालिसिस है, मॉड्यूल में पैरालिसिस ये वर्ड लिखा हुआ है। और एक बार फोटो ले लो बेटा, इट कैन ऑल्सो कॉज पैरालिसिस। ठीक है ये हो गया। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज डन। और कुछ डिजीज क्या बचा है अपना? आई डोंट थिंक सो। लेकिन पिछले दिन मैंने एयरबॉर्न डिसऑर्डर पढ़ा दिया था ना, नाम लिखा दिया था ना, ये सब एयरबॉर्न डिसऑर्डर्स है, वो लिखा दिया था मैंने। अच्छा वो लिखा दिया था। अब एक चीज, हाँ बोलो। रूबेला है, डेफिनेटली रूबेला होगा, रूबेला नहीं दिया था ना, रूबेला भी होगा करेक्ट। एक सेकंड बेटा, और एक चीज एक सेकंड देख लेते हैं। इसके बाद तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज पार्ट है, वो तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन वाला एक पार्ट है। जस्ट होल्ड ऑन। কোনটা, কোন ব্রেন ডিসঅর্ডারের কোন ট্রিটমেন্ট আছে?
कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट है? आज तक कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिला नहीं है बेटा। जीन थेरेपी तो वो, अब देखो जीन थेरेपी भी कितना सक्सेसफुल है, आप बोलिए। वो तो टेक्निक है जिससे हम लोग थियोरेटिकल एप्लीकेशन, और उसका कल किसी ने मुझे पूछा, ये आप लोगों से शेयर करते हैं, कल एक पेरेंट इंटरेक्शन में पेरेंट बोल रहे थे क्लास 11th में बच्चा अगर साइंस तो साइंस है, आईएससी में पढ़े या सीबीएसई में पढ़े, क्या दिक्कत है? बात तो एक ही है। हाँ, ये तो सही बात है एकदम। और यही तो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस। थियोरेटिकली हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन आएगा, द स्ट्रीम, जो बोर्ड में आप पढ़ोगे उसका जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी किसी का है और किसी का टेक्स्ट बुक है नूतन या तो रस्तोगी, तो क्या होगा फिर? वो नूतन भी पढ़ेगा और एनसीईआरटी भी पढ़ेगा, तो एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ पाएगा, एग्जाम खराब होगा। यही तो होता है। इसीलिए तो आईएससी बोर्ड से सक्सेस रेट कम है, इसीलिए तो है। तो बताया मैंने तो, हाँ सर ये तो सही बताया, ये तो ऐसे कोई बताते नहीं है। हाँ, लोग तो ये भी बताते हैं कि फिजिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो तो आईआईटी के लिए भी जो है, मेडिकल के लिए भी वही है। फिर आईआईटी का अलग सा फिजिक्स क्लास और मेडिकल का अलग सा फिजिक्स क्लास क्यों लगता है? क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक डॉक्टर के पास आप जब पेशेंट लेके जाओगे तो डॉक्टर बैठ के सोचेगा इसके लोग क्या करना है? नहीं सोचेगा ना, तब मार खाएगा जगह सोचेगा तो, नेचुरली। तो डॉक्टर को तुरंत काम करना है, और एक आईआईटीएन के पास कोई प्रोजेक्ट लेके जाओ तो प्रोजेक्ट को तुरंत करना चालू करेगा क्या? वो तो उसको लेके सोचेगा। तो अगर एप्लीकेशन अलग है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी सेम? अप्रोच ऑफ द एग्जाम इज आल्सो डिफरेंट, राइट? इसमें जल्दी करो, तुरंत करो, है ना? आइदर यू नो और यू डू नॉट नो, बीच में कुछ है नहीं नीट में। क्वेश्चंस आर इधर इजी और वेरी इजी, है ना? किसी को इजी नहीं लगता, वो अलग बात है। ऑफ द लाइक्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए वैक्सीन के बारे में जरा डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट। जरा वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में चलिए। वैक्सीनेशन अपना सिलेबस में है। अच्छा, एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी वैक्सीनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। एंड वैक्सीनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, राइट? तो इम्यूनाइजेशन, और दो चीज मैं बताऊंगा माय डियर। एक वर्ड लिखिए, एक वर्ड आपके मॉड्यूल में लिखिए, मतलब एनसीईआरटी में लिखिए। देखो वैक्सीनेशन वाला पैराग्राफ निकालिए, वैक्सीनेशन वाला पैराग्राफ निकालिए, उसमें एक चीज लिखिए माय डियर, NAIVE, नेव, NAIVE, नेव। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जो लोग हो उन लोगों के लिए भी बता रहे हैं माय डियर, NAIVE, नेव। व्हाट इज नेव? लिखो, एन अनइम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल इज अ नेव। An unimmunized individual is a knave. Vaccination is also called prophylaxis. ये भी लिख देना, prophylaxis. Vaccination is also called prophylaxis, my dear. ठीक है? और लिखिए the word prophylaxis, लिखा तो मैंने, ठीक है? And unimmunized individual is a knave, ये लिखा आपने? ये is an important statement. अब देखिए वैक्सीनेशन में कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन लिख दीजिए। टाइप्स ऑफ वैक्सीन अगर एनसीईआरटी में जगह है तो एनसीईआरटी में लिखना ही बेहतर है, लेकिन छोटा छोटा करके लिखिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं कह रहा हूं, एग्जाम से पहले कॉपी नोटबुक निकाल के आप पढ़ नहीं पाओगे, तो एनसीईआरटी के बाएं तरफ अगर लिख सकते हो तो बेटर है, छोटा लिखिएगा, है ना? नहीं तो स्टिकी नोट लगा दीजिएगा। चलिए, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। नंबर 1, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है? Number 2, inactivated vaccines. Number 2, live attenuated, एक टू गैप दिए। Number 2, live attenuated vaccine. Live attenuated, attenuated का स्पेलिंग है ATTENUATED, 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 attenuated. So live attenuated vaccine लिखा। क्या है attenuation वो भी बताएंगे, don't worry. Next लिखिए mRNA vaccines. mRNA vaccines. नेक्स्ट लिखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, rDNA vaccines, स्मॉल rDNA, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स। नेक्स्ट लिखिए कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, कॉन्जुगेटेड लिखा, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स। नेक्स्ट लिखिए टॉक्सॉइड, TOXOID, टॉक्सॉइड, TOXOID, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स।
वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। मैंने अल्टीमेट लेवल पे जितने भी टाइप्स होते हैं सब पढ़ा दिया। अब इसके एग्जांपल्स भी दो चार दे देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वाला जो था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, मतलब आपको समझ में आता है कि द किल जम्स आर किल्ड, हीट किल्ड जम्स, उससे हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, इसीलिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या है? जर्म इज लिविंग, उस कंडीशन में उसका जो एक्सट्रैक्ट है हम लोगों ने लिए और उसको हम लोगों ने डाइल्यूशन किए बाय द एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। व्हाट इज एटेन्यूएशन? डाइल्यूशन ऑफ द extract from the live organisms, समझे, by using absolute alcohol, that is called attenuation। उससे क्या होता है? infectivity of the agent, infectivity of the agent को कहते हैं हम लोग virulence। क्या कहते हैं? the virulence is reduced due to attenuation। ये समझ में आया आपको? ये जो वर्ड मैंने कहा virulence, virulence मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म या उसका जो प्रोडक्ट है उसका लेवल ऑफ इन्फेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड virulence। The virulence is highly reduced in case of attenuation because in attenuation we add absolute drops of absolute alcohol for dilution। तो dilution करने से क्या होता है? Virulence of the infective agent is reduced। Am I clear? तो whenever we use the term attenuated या तो attenuation, इसका मतलब by attenuation we reduce the virulence। तो attenuated में क्या होगा? Reduction in the virulence। तो रिडक्शन इन द विरुलेंस, तो विरुलेंस को रिड्यूस किया जाता है बाय एडिंग एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है एटेन्यूएशन वर्ड का रिलेटेड। तो अब देखो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मैंने आपको कहा, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में किल जर्म, हाँ तो वो एक है। अब देखो पहले वाला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, कॉमनेस्ट ओरल पोलियो वैक्सीन। रेबीज, रेबीज वैक्सीन, RABIES, रेबीज। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, रेबीज। এখানে একটা one important information I need to give you, in killed vaccine it does not give immunity like live vaccine। live vaccine में immunity ज्यादा देता है, ठीक है, लेकिन किल्ड वैक्सीन में उतना ज्यादा इम्यूनिटी देता नहीं है लाइक लाइव वैक्सीन, समझे ना। इसीलिए किल्ड वैक्सीन में जो डिजीज में किल्ड वैक्सीन दिया जाता है उसका बूस्टर डोज होता है। ये जो बूस्टर डोज होता है ना, पीरियड के 5 इयर्स 3 इयर्स बाद बूस्टर डोज होता है। और ओपीवी का कितना बूस्टर डोज होता है पता है ना आप लोगों को? बचपन में पिलाया जाता है, फिर 5 साल में पिलाया जाता है, फिर 7 साल में पिलाया, तो इतने ज्यादा बूस्टर डोजेस होते हैं इन केस ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। समझ में आ गया? तो ये जो वैक्सीन है, दिस पर्टिकुलर किल्ड वैक्सीन जो है, हिट किल्ड वैक्सीन जो है, उसका इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का जो क्षमता है वो इज लेस देन लाइव वैक्सीन। एम आई क्लियर? एंड देयरफॉर वी रिक्वायर अ बूस्टर डोज फॉर देम। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर? Why do we require booster dose? Booster dose is given only for those vaccines which are hit kill vaccines, because hit kill vaccine में the toxin that has been introduced is of less virulence, और इसीलिए वो immunity कम दिन का देता है, और इसीलिए we require a booster dose। Am I clear? कोई दिक्कत किसी को? ये अलग से किसी जगह पे लिख लीजिए छोटा सा। तो hit kill vaccine अलग से लिख लीजिए, hit kill vaccine provides less immunity than live vaccine। देखो ठीक है चीज, Heat kill vaccine provide less immunity than live vaccine and therefore we require a booster dose for the same। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि हिट किल वैक्सीन से इम्यूनिटी जो होता है वो थोड़ा कम दिन का होता है, इसीलिए हम लोगों को एक बूस्टर डोज देना पड़ता है पीरियोडिकली। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। रेबीज और बता दिया ना मैंने, पोलियो, ओपीवी, ओपीवी समझते हो तो ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दिया हुआ है, उसके बारे में बात करें। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, उसमें हम लोग बात करें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, बीसीजी। बीसीजी पता है ना, बैसिलस कैलमेट-गुएरिन, पता है ना सबको? बीसीजी, बैसिलस कैलमेट-गुएरिन किसके लिए दिया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हो गया। चलो, mRNA वैक्सीन, एग्जांपल कोविड-19।
कोविड-19 में हम लोग mRNA वैक्सीन भी यूज किए हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन भी यूज किए हैं। चलो mRNA वैक्सीन लिखा आपने? mRNA वैक्सीन হচ্ছে কোভ্যাক্সিন, mRNA ভ্যাকসিনটা, আর ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন হচ্ছে কোভিশিল্ড। কি করে জানলি এটা? राइट, चलो अच्छा, RDNA वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट, ये तो आपको पता ही है। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दैट वाज प्रोड्यूस्ड, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पता है ना? कॉन्जुगेटेड वैक्सीन दिएছো ना, लिखो। हाँ, डीपीटी, डीपीटी पता है ना, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। एमएमआर, मम्स मिजल्स रूबेला, है ना? सो दीज आर ऑल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, ठीक है? डीपीटी बोले दिले एमएमआर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स लिखेছো। डिप्थेरिया टिटेनस, डिप्थेरिया टिटेनस, डिप्थेरिया टिटेनस, ठीक। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, कोविड-19 हम लोगों ने यूज किया है, कोविशील्ड एक्चुअली जो यूज किया है। আরেকটা হচ্ছে এইডস, ইবোলা আর জিকা, ZICA। These three researches are going on. These three are viral vector vaccines. এটা এখনো মার্কেটে আসেনি, হ্যাঁ, this has not come out in the market. AIDS, Zika and Ebola, इन तीनों का वैक्सीन जो है ना, ये मार्केट में अभी तक नहीं आया। Research is going on this, ठीक है? Sir, I have a question. हाँ बोलो। Sir, Ebola, like I was watching a documentary on it, and it was shown like people have survived from it. So without vaccine, how they have survived from it? Without vaccine, it all depends on the virulence of the disease for that particular person. ऐसा नहीं है कि हर कोई सर्वाइव करा है, वो विरुलेंस जिसके अंदर कम हुआ है उसके अंदर वो सर्वाइव करा है, लेकिन फॉर द अदर डिजीजेस लाइक जिका एंड एड्स इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव, है ना? वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्फेक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। जनरली क्या होता है विद म्यूटेशंस, क्या होता है, इसका इन्फेक्टिविटी बढ़ भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोस पर्सन्स हु हैव बीन अफेक्टेड एंड गॉट क्योर्ड recovered themselves successfully, so in that condition what happens is the infectivity is less, ठीक है? अच्छा, আরেকটা জিনিস দাঁড়া, এটা বলে দিলাম। और एक छोटा सा चीज इसमें একটা কথা লিখে রাখ, एमएमआर सॉरी मिजल्स वैक्सीन, एक अलग से एक पॉइंट लिख के रख, मिजल्स वैक्सीन, है ना, is given at the 9th month, sorry 9 month, 9 years, 9 years, 9 বছরে, एक सेकंड, मंथ। मिजल्स वैक्सीन, अलग से मिजल्स वैक्सीन अगर देना है तो 9th मंथ में हम लोग देते हैं, ठीक है? तो यही है, ये डन हो गया, वैक्सीनेशन बता दिया आपको, और फिलहाल आपको और कुछ नहीं बताना है। अभी आप लोग ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का डिस्कशन हम लोग करेंगे, उसमें एसेंशियली जो ड्रग, वो एनसीईआरटी से ही हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली एनसीईआरटी का ही एकदम लाइंस डिस्कस्ड होंगे, और एनसीईआरटी का लाइन ही कॉपी होता है उसमें, समझे ना? तो ड्रग्स के बारे में, चलिए ड्रग्स के बारे में डिस्कशन चालू करिए। ये एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग एनसीईआरटी को जरा फॉलो कर लीजिए, है ना? चलो शुरू करो। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स, ओपियम থেকে আসে, তারপরে somniferum, চলো। अच्छा, some are obtained from fungi, इसके बारे में कोई डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं है, जरा लिखिए मार्क करके। फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ऊपर लिखते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया, and the extract is called ergot,
Claviceps purpurea is the name of the fungus, or the extract is called ergot, ERGOT. That is also a drug which is used and abused. चलो एग्जाम का क्वेश्चन, प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओपियोइड रिसेप्टर्स. एकदम एग्जाम का कॉपी पेस्ट लाइन है ये हर लाइन, ये सब कॉपी पेस्ट लाइन है. स्मैक. डाइएसिटाइल मॉर्फिन मतलब 2 बार एसिटाइलेशन किया जाता है, मतलब एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है टू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन. और वो जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है करेक्ट. हाँ ये स्ट्रक्चर करेक्ट है. तो किसी के पास पुराना किताब हो सकता है तो यही फोटो खींच के डाल दे एक बार ग्रुप में इसी को. हाँ तू भी तो सेम है कर ले, सिर्फ इस फोटो को खींच के डाल दे ग्रुप में, यही फोटो है. अच्छा किसी के पास केमिस्ट्री एनसीईआरटी है वॉल्यूम 2? किसी के पास नहीं है केमिस्ट्री एनसीईआरटी वॉल्यूम 2? घर में बैठे हुए जो लोग हैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 निकालिए. Sir, I have a question. Like in opioids, why they are like, okay, they bind to like CNS, but why they are binding to gastrointestinal tract? सीएनएस में होगा तो सीएनएस में बाइंडिंग करेगा तो जीआई ट्रैक्ट को जो लोग सप्लाई करता है द नर्व्स, दोस आर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, तो वो सप्लाई चेन को वो ब्लॉक करता है, इसीलिए दे आर आल्सो बाइंडिंग टू द जीआई ट्रैक्ट बिकॉज़ द नर्व सप्लाई इज देयर इन द जीआई ट्रैक्ट. दोस आर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स जो है उसमें प्रॉब्लम करेगा. अच्छा आपके पास एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 केमिस्ट्री है जो बात कर रहे हो Yes, आप? sir. अब निकालिए एक बार, वो निकाल के आप लोग अब उसमें जाइए, बायोमोलिक्यूल खोलिए, बायोमोलिक्यूल के पीछे की तरफ जाइए, जाके देखिए एक जगह पे 3 फोटोग्राफ्स है, 3 या 4 फोटोग्राफ्स है एक ही इसमें, जहां पे मॉर्फिन है, कोडिन है, किसका 3 फोटोग्राफ है, एक बार देखिए, स्ट्रिक्निन है शायद, ऐसा कुछ. उस पेज का फोटो दीजिए एक बार, ग्रुप में शेयर कीजिए. पेजिस তোর কাছে অনলাইনে বের করেছিস বইটা? हाँ तो उसमें देख वो पेज निकालिए, बायोमोलिक्यूल के पीछे है, देखो. मिला? नहीं मिला? पप. यदि पाई তোর মাথা ফাটাবো আমি. কোথায় শেষ হয়ে গেল কেন? আসছে না, बायोमोलिक्यूल में नहीं है क्या? ओ ওটা বোধহয় बायोमोलिक्यूल. एक सेकंड दाঁড়া. Sir, it's not there. दाঁড়ा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो हटा दिया गया ना अभी. नहीं केमिस्ट्री एवरीडे जो है उसी में है वो. एक सेकंड रुक जा, इट्स नॉट देयर ना, इसमें नहीं है. तो और एक चैप्टर था उसमें, कौन सा चैप्टर है? इसके पहले वाला चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. और एक चैप्टर है फिर Amines. Amines. है पॉलीमर्स. देखो तो पॉलीमर्स टा बेर करो तो वो है सिलेबस में. नहीं पॉलीमर्स तो नहीं है, लेकिन वो निकाला था मैंने उस दिन. देखिए एमाइन से থাকবে না, एमाइन से কেন থাকবে? अरे कहां से देखा था वो? जिसके पास वो ओल्ड एनसीईआरटी उसके पास ही मिलेगा, इसमें नहीं है न्यू में. नहीं वो बच्चे लोग मुझे दिया था उस दिन निकाल के. হ্যাঁ এই তো এটা অনেক দিয়েছে. এই তো এটা কোথায় আছে? এটা কোন চ্যাপ্টারে রে? কেমিস্ট্রি ইন এভরিডে লাইফ. ও আচ্ছা এইটা শেয়ার করে দে গ্রুপে. অনেক দিয়েছে, অনেক ছিল অনলাইনে. বাহ অনেক কুমার, थैंक यू. ये जो देखिए একটু নিচ্ছি রে বাবা, ये जो देखिए ये जो है, हाँ इसमें देखिए वैलियम, सेरोटोनिन, नीचे का 3 देखिए, मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडिन. इन 3 का स्ट्रक्चर देखिए, और हेरोइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में हेरोइन नहीं रहे, एनसीईआरटी में मॉर्फिन है, और उसी का एसिटाइलेशन से ये आया है. तो किस किस पोजीशन पे एसिटाइलेशन हुआ है वो जरा देख लीजिए उस फोटोग्राफ में. यही मैं पढ़ाना चाहता था एक्चुअली. तो मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडिन, ठीक है. उसमें ये जो हेरोइन है उसका स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में दिया जाएगा, मॉर्फिन नहीं दिया, हेरोइन का स्ट्रक्चर दिया है ना, तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा बेटा, बिकॉज किस किस पोजीशन पे एसिटाइलेशन हो रहा है वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज कर दिया तब गड़बड़ हो जाएगा. तो हेरोइन का स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो एखान থেকে উঠিয়ে ওটাই ইউজ করে নাও, ঠিক আছে.
আর মরফিনের সাথে কোডিনের স্ট্রাকচারের ডিফারেন্সটা একবার দেখে নেবে। you need to see the difference between morphine and codeine as well, है ना? एकदम स्ट्रक्चर सिमिलर है, केवल सब्स्टिट्यूशन में चेंज है, देखो, है ना? तो ये सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंज है, वो देख लीजिए। वो मिथाइल ग्रुप है और इसमें एसिटाइल ग्रुप है। देखो मॉर्फिन एंड कोडीन का डिफरेंस में एक तो मिथाइल ग्रुप है, इसमें दो, अच्छा हेरोइन में 2 एसिटाइलेशन है और कोडीन में 1 एसिटाइलेशन है और एक है OH ग्रुप हैज बीन एडेड, ताई तो माने हाइड्रोजन हैज बीन एडेड, ताई तो। सो अब देखिए मॉर्फिन में कुछ, मॉर्फिन का 2 जगह पे एसिटाइलेशन करने के बाद हेरोइन होता है और मॉर्फिन का एक जगह पे केवल हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो बन गया कोडीन। समझ में आया? कंपेयर इट विथ मॉर्फिन, कंपेयर इट विथ मॉर्फिन, ठीक है? এটা আমাকে পাঠিয়ে দেবো একটু। कंपेयर इट विथ मॉर्फिन। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैं बताना चाहता था आप लोगों को, क्योंकि दीज आर एल्कलॉइड्स, तो इन तीनों एल्कलॉइड इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के लिए, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। और इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना लीजिएगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री एवरी टाइम हट गया है, तो मतलब ये देख लीजिए आप, है ना? इधर लिख लीजिएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मॉर्फिन आपने पढ़ा है तो 2 एसिटाइलेशन आपने देख लिया और कोडीन में एक एसिटाइलेशन के बदले में मिथाइल ग्रुप इज एडेड, दैट्स इट, ठीक है ना? तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज हेरोइन, तो हेरोइन का स्ट्रक्चर भी हो गया, कोडीन भी हो गया। चलो कैटरपिलर शुरू करो। एग्जाम का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन, व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम का। बोलिए। That is Papaver somniferum. Latex of poppy plant is an example. Latex of poppy plant is an example. Is an example, is a question. चलिए। Snorting माने, what is snorting? That is snorting, है ना? नाक से लेना। Depressant, अच्छा, there are 2 terms. One is called psychedelic drug, one is called psychotropic drug. এখানে লিখছি, one is psychedelic, one is called psychotropic. तो psychedelic হচ্ছে ডিপ্রেসেন্ট और psychotropic হচ্ছে increased, सब कुछ इंक्रीज कर देगा, वो डिप्रेस नहीं करेगा, हाइपर एक्टिविटी करेगा, दैट इज साइकोट्रोपिक। এই দুটো টার্ম লিখে রাখবে। साइकोडेलिक ड्रग इज डिप्रेसेंट्स एंड हाइपर एक्टिविटी को प्रमोट करेगा साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है? तो कुछ कुछ चीज मैंने बताया, क्लेविसेप्स बताया, याद रखना, ये भी बताया, साइकोडेलिक एंड साइकोट्रोपिक। पढ़ो। Cannabinoids are group of chemicals, कैनो, just like testosterone. हम लोग क्या कहते हैं? Androgens are group of chemicals, estrogen are group of chemicals, progesterone are group of chemicals. Similarly, cannabinoids are group of chemicals. उस पे लिखिए आप लोग tetrahydrocannabinol, tetrahydrocannabinol. This is the composition. टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, मैंने पोजीशन नहीं बताया किस किस पोजीशन पे है, जरूरी नहीं है, ठीक है? 4 हाइड्रो मैंने कोताया है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैनबिस। कैनबिस, अच्छा कैनबिस इंडिका भी है, कैनबिस सैटाइवा भी है, दोनों है, ठीक है? इंडियन, अच्छा दिस इज आल्सो कॉल्ड हेम्प, अच्छा लिखे रखो, इसको हम लोग हेम्प कहते हैं, HEMP। कैनबिस को हम लोग हेम्प कहते हैं, HEMP। This is hemp. অনেকগুলো জিনিস টুকটুক করে বলে দিলাম। That is hemp. চলো। What is inflorescence? What is inflorescence? What is the definition of inflorescence, my dear? सिलेबस में है ना inflorescence? बताइए। रेसिमोस है ना, साइमोस भी है आप लोगों का, यही डेफिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। अरेंजमेंट रेसिमोस का क्या होता है? एक्रोपेटल या बेसिपेटल? एक्रोपेटल, बेसिपेटल इन केस ऑफ, मतलब रेस्ट्रिक्शन, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड, है ना? चलो
हाँ, द फ्लावर टॉप्स, हाँ बोलो। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा सब कुछ मिलता है फ्रॉम दी हेम्प, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेम्प सप्लाई डिफरेंट थिंग्स। समझ में आ गया? I have seen a person die with overcharge of this marijuana. The person died. बाद में पता चला कि marijuana ये किया था उसने, है ना, cardiac arrest हो गया था. I've seen that. I've even seen a person die of heroin overdose. चार्ज किया था, gone. चलो, अच्छा इसका स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा. कोका एल्कलॉइड, चलो एथोजाइलम कोका, साउथ अमेरिकन प्लांट. चलो, इंक्रीज विगर. कोकेन क्या करेगा? इंक्रीज विगर, इसीलिए कोकेन लेता है ना एथलीट्स. बोलो. डोपामिन, स्नॉटेड, नाक दिए टाने. So stimulating action, neural stimulator. So it's a psychotropic drug. Depressant is a psychedelic drug. Am I clear? तो पहले वाला पैराग्राफ में जो भी डिस्कशन हम लोगों ने करा था, those were depressants. But these are all potent stimulators. चलो. अच्छा, what is hallucination? What is hallucination? लिख लीजिए साइड में. Hallucination and illusion में डिफरेंस क्या है? The object is absent. That is hallucination. मतलब एक ऑब्जेक्ट नहीं है आपके सामने, लेकिन आप ऑब्जेक्ट सोच रहे हो. You are thinking of an object, even though the object is absent in front of you. That is what is called hallucination. যেমন Charles and Mary Lamb Macbeth লিখেছিল, Macbeth was in a fearful hallucination and the dagger in the air was symbolic instigator of his own crime. उनका राइटिंग है. दैट वाज द यूज ऑफ द वर्ड हेलुसिनेशन. समझे ना? हेलुसिनेशन में क्या होता है माय डियर? द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट एंड वी आर इंटरप्रेटिंग इट टू बी डिफरेंट. एम आई क्लियर? दैट इज हेलुसिनेशन. व्हाट इज इल्यूशन? एक रस्सी पकड़ा, आपको लग रहा है सांप पकड़ा है. एक छड़ी पकड़ा, आपको लग रहा है सांप है वो, या वो रस्सी है. तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एंड यू आर इंटरप्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे. दैट इज इल्यूशन. समझे? समझे? जैसे मैं प्रेजेंट हूं और अपना इसको क्या नाम है, भाग्यलक्ष्मी को लग रहा है कि कोई नहीं है. नहीं, यू आर, मैं प्रेजेंट हूं, यू आर इंटरप्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे. चलो, एक मोटा सा बंदा प्रेजेंट है, आपको लग रहा है टॉम क्रूज प्रेजेंट है. दैट इज अ सीवियर काइंड ऑफ इल्यूशन दैट हैपेंस. चलो, अच्छा, एट्रोपा बेलेडोना, इसके एक्सट्रैक्ट का नाम है एट्रोपिन. ये तो आपको पता है. Atropine is generally used as a vasodilator. इसको हम लोग डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल में कॉमनली यूज करते हैं. व्हाट इज द कॉमनेस्ट यूज ऑफ एट्रोपिन माय डियर? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है. यू आर टेकन टू आई हॉस्पिटल फॉर चेकिंग योर आईज एंड देन द पेशेंट इज गिवन 2 drops of a particular drug. A particular drug is given 2 drops on the eyes and asked to wait. What kind of drug has been used? Used for the dilatation of pupil. लिख लीजिए. Commonest use is dilatation of pupil. Pupillary dilatation. Very important. यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है ना? एंड दत्तूरा बोलो. एक सेकंड रुक जा. एक सेकंड माय डियर. एक सेकंड. तो बेलेडोना लिखा आपने, एट्रोपा बेलेडोना, उसका एट्रोपिन. धतूरा का एल्कलॉइड का नाम लिखिए. 2 है.
One is atropine, and other one is scopolamine. SCOPOLO, scopolamine, LAMINE. This is scopolamine. अच्छा, नेक्स्ट और एक एल्कलॉइड का नाम लिखिए, तो दतुरा का 2 मैंने बताया, बेलेडोना का 1 बताया मैंने, हो गया। दतुरा का 2, बेलेडोना का एट्रोपिन भी दतुरा में प्रेजेंट, इसीलिए एनसीईआरटी में दतुरा लिखा है। কেন লিখেছে বুঝতে পেরেছো? বিকজ এট্রোপিন ইজ অলসো অবটেন্ড ফ্রম দাতুরা along with বেলেডোনা। Am I clear? Number 2, আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, there is another drug that is called strychnine, STRYCHNINE, strychnine लिखिए, नक्स वोमिका, ये दवा भी है, आपको पता है, नक्स वोमिका बोल के एक दवा होता है होम्योपैथी में, तो स्ट्रिक्निन ये भी नाम लिख लीजिए। दिस इज एन अल्कलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नक्स प्लांट, स्ट्रिक्निन, STRYCHNINE। और एक आर्टिकल लिखो, आर्टिकल अल्कलॉइड लिखो, कोनिन, CONI, কোনিন বা কোনিনিন যে কোনো একটা বলে। সো ইট ইজ, দেখেছো, CONINE, কোনিন। দিস ইজ অবটেন্ড ফ্রম কোনিয়াম ম্যাক और हेमलॉक, कोनियम मैक्यूलेटम, साइंटिफिक नेम है माय डियर। इसका और एक नाम है हेमलॉक। किसको दिया गया था ये ड्रग मारने के लिए? पुरानो पढ़ाओ पढ़ाशोना माने কিছুই পড়াশোনা नहीं তার মানে। इसको किसको दिया गया था ये मारने के लिए? किसको मारने के लिए दिया गया था ये? हेमलॉक, सोक्रेटिस को दिया गया था। और हेमलॉक का जो पैरालिसिस होता है, नीचे से ऊपर पैरालाइज होता है, उल्टा रिवर्स पैरालिसिस। जनरली क्या है, पैरालिसिस इधर इंजुरी होगा तो ऊपर से नीचे होता है ना, इसका पैरालिसिस नीचे से ऊपर होता है, ये यूनिक है इसका। एनीवे, बता दिया जितना ही बताना था, सब बता दिया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एट्रोपा बेलेडोना का पढ़ा, दतुरा का पढ़ा, कोनियम का पढ़ा, फिर इसका नक्स मॉस्केटा नक्स वोमिका का पढ़ा, है ना, स्ट्रिक्निन। ऑल आर इंपॉर्टेंट, दिस आर डेडली पॉइजन्स। चलो benzodiazepines, barbiturate, amphetamines, benzodiazepines। चलो लेकिन इसको ज्यादा ले लेंगे तो ड्रग अब्यूज हो गया। Definition of drug abuse. Last sentence, the definition of drug abuse. That is the definition. ये definition याद करके जाना एग्जाम में। जैसे मैंने नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन याद करवाया था, फिटनेस का डेफिनेशन याद करवाया था, वेरी मच इन द सेम वे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग अब्यूज। समझ में आया? तो एक और चीज बताते हैं माय डियर, और एक ड्रग का नाम लिखिए, हेलोसिनोजेन का नाम, LSD, lysergic acid diethylamide, lysergic acid diethylamide, LSD।
इट्स अ सीवियर काइंड ऑफ हेलोसिनोजन। तो हेलोसिनोजन में एक एक्स्ट्रा ऐड कराया, ये पुराना एनसीईआरटी में था। सिंथेटिक है, हाँ ठीक है, फंगस से भी यूज एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो अर्गोट मैंने बताया ना, उससे भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस, लेकिन इसको अभी सिंथेटिक बनाया जाता है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड शुगर क्यूब। दिस इज कॉमनली कॉल्ड शुगर क्यूब, इसी नाम से बिकता है। ठीक है, तो ये हो गया, एलएसडी वाला चक्कर हो गया, ड्रग अब्यूज का डेफिनेशन हो गया। तो ये याद रख सकता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा हम लोगों ने, उससे ज्यादा कुछ नहीं करा, ज्यादा नहीं करा। अच्छा, আমাদের ইয়েতে অনেক আছিস কি প্ল্যাটফর্মে, আমাদের ইয়েতে বায়োলজি কি জানো, কেমিস্ট্রি কি জানো চ্যাপ্টারটার নাম, এভরিডে লাইফের মধ্যে কি এটা আছে, আমাদের এলএসডি স্ট্রাকচার আছে, ছিল এলএসডি স্ট্রাকচার, কোথায় ছিল মনে করতে পারছি না, পুরনো এনসিইআরটি में। ঠিক আছে, छोड़ दे, ঠিক আছে, চলো। स्नफ समझते हो ना, स्नफ समझते हो ना, ऐसे लेता है और हची देता है, वो स्नीजिंग होता है उसमें, है ना, दैट इज स्नफ। उसको टोबैको, उसको को एकदम ये ड्राई करके उसको एकदम डस्ट बनाया जाता है, दैट इज ऑल्सो टेकन। ठीक है, পড়ছিস তুই এনসিইআরটি কোথায় তোর, আনিস নি, ক্লাসে এসছিস কেন, উল্টো লটকে দেবো তোকে আমি। हाँ, अच्छा, তাহলে एड्रेनालिन और एड्रेनालिन जो है, तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है इसका, सिंपैथेटिक स्टिमुलस बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या, स्टिमुलेटरी इफेक्ट है एब्यूज में। चलो, अच्छा एक जिनिस, एक सेकंड, तो ब्रोंकाइटिस के बारे में एनसीईआरटी में किसी भी जगह पे मेंशन नहीं है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एम्फाइसीमा डिस्कस्ड है, एस्थमा है, और एक टर्म आ गया ब्रोंकाइटिस। ठीक है, याद रखिएगा, दीज ऑल टुगेदर आर कॉल्ड सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा लिखा है ना बेटा, और दो है उसमें, ब्रोंकियल एस्थमा और एक है ब्रोंकिएक्टेसिस। तो दीज आप लोगों के लेवल पे 3 वर्ड दिया गया है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, और एस्थमा। ब्रोंकाइटिस और एस्थमा, सॉरी, एम्फाइसीमा एंड एस्थमा के बारे में डिस्कशन है उसमें, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और इसमें आ गया ब्रोंकाइटिस। सो ऑल दिस 3, इसको सीओपीडी या तो सीओपीएस कह सकते हो आप लोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और डिजीज के बदले में सिंड्रोम, ये भी कह सकते हो, समझे ना। चलो, क्यों, अच्छा, वाई, एजर्शन करो उसको, हिम बाउंड ऑक्सीजन का परसेंटेज रिड्यूस होता है, उसका एजर्शन करो, उसका रीजन लिखो साइड में, वो सेंटेंस का एजर्शन करिए, उसका रीजन लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जो लोग हो, एनसीईआरटी में लिखिए, लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ कन्वर्ट्स Fe2 plus of heme, Fe2 plus of heme into Fe3 plus, Fe2 plus of heme into Fe3 plus, that is, within bracket, that is the maximum oxidation state of iron, bracket close, therefore it cannot bind to any more oxygen. तो नेचर ऑफ हिम चेंजेस, है ना, हिम का नेचर ही चेंज हो गया। गॉट माय पॉइंट। ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से करता है, क्वालिटी ऑफ हिम को चेंज करता है, क्वांटिटी ऑफ हिम को चेंज करता है, क्या करता है, आंसर इज क्वालिटी ऑफ हिम इज चेंज्ड। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इसका रीजन बता दिया, ये भूलना मत, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस माय डियर। चलो,
अब्यूज। तो अल्कोहल अब्यूज में क्या होता है उसके बारे में जस्ट एक छोटा सा स्कीमेटिक चार्ट बना देते हैं माय डियर। Sir, I have a question. हाँ बताओ। Sir, in like vitamin A is good for us, right? But when people apply retinol or something, it gets absorbed into skin, and that is not safe for pregnancy. Why, if it is just a derivative of vitamin A, then why it is prohibited? नॉट रिक्वायर्ड। Okay. इसका डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, नॉट रिलेटेड। इसका डिस्कशन आप अलग से मुझे पूछ लेना, बता देंगे। क्लास में डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि अभी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हैज बीन रिमूव्ड एंड विटामिन का डिस्कशन भी नहीं है। ठीक है, इसको अलग से मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा, तुरंत बता देंगे। लेकिन ये डिस्कशन अभी फिलहाल इस पे नहीं करना है। देखो क्या कहते हैं, इसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है बेटा? अल्कोहल बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ इथेनॉल, है ना। इसका देख लीजिए, सबसे पहली बात तो ये है, अल्कोहल गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, अल्कोहल कंजम्पशन एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, absorbed in the blood, and from the blood it is transported into the hepatic circulation. hepatic circulation समझ में आ गया? लिवर। hepatic circulation में जाके within the liver क्या होता है बेटा? this ethanol C2H5OH gets converted into CH3CHO, that is acetaldehyde. ध्यान दीजिएगा, acetaldehyde, acetaldehyde, ठीक है। and this acetaldehyde जो फॉर्म करा within the liver, this causes inflammation of the liver, inflammation of the hepatocytes. so inflammation of the hepatocytes, तो hepatocytes का inflammation हो गया, तो it causes two things. number one, acetaldehyde fat metabolism को inhibit करता है। एक तरफ inflammation of the hepatocytes, number two inhibits the lipid metabolism, fat metabolism, समझे। and therefore accumulation of fat within liver cells, this is one thing. inflammation अगर prolonged हो गया, this will result in fibrosis, माने fibrous tissue deposition in liver, that is fibrosis. so that will result in liver fibrosis. एक तरफ liver fibrosis और एक तरफ accumulation of lipid within liver, दोनों मिलके causes atrophy of liver. atrophy मतलब liver सूख जाता है, dryness of liver, सूख जाता है, and that is called cirrhosis. ये mechanism लिख लीजिएगा, alcoholism में ही लिखिएगा, NCERT में लिखने से ये रहेगा, एग्जाम से पहले झट से देख पाओगे। ठीक है, ज्यादा नहीं करा। अच्छा, अरेक्टा क्वेश्चन अल्कोहलिज्म से पूछा जाता है माय डियर, वो ये है, अल्कोहल कंजम्पशन सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है? हम लोगों का एक गलत फहमी है कि अल्कोहल कंजम्पशन सबसे पहले कंज्यूम करने से हम लोग लड़खड़ाते हैं। लड़खड़ाने के लिए द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस इज सेरिबेलम। तो हम लोग सोचते हैं कि सेरिबेलम विल बी द आंसर, बट नो। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब थिंकिंग एबिलिटी डिस्टॉर्टेड होता है। So first to affect is the cerebrum, then it affects the cerebellum. कि बोलम after alcohol absorption, तो alcohol first affects the cerebrum. इसमें होता है brain fog. ठीक। Number 2, then it affects the cerebellum and therefore affects the cerebellum, and therefore body balance and posture is distorted. है ना, समझ में आ गया? ये कॉमन क्वेश्चन है बेटा कि अल्कोहल में सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, और क्वेश्चन ही पूछा जाता है सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है। और अगर सबसे पहले के बारे में बात हुआ, it is always the cerebrum, not the cerebellum. Always the cerebrum, not the cerebellum.
Am I clear? चलो, so this is about alcohol abuse, ठीक है, वो लिख लीजिए। तो सिरोसिस एक पार्ट है और ये वाला एक पार्ट है माय डियर, इसको लिख लीजिए। अच्छा, अब तब तक उसका आंसर दे देते हैं। হ্যাঁ, রেটিনলের যে তুই কোশ্চেনটা করলি, ভিটামিন ए डायरेक्टली स्किन মধ্যে দিলে, अगर वो स्किन में दिया जाता है, एक बार बताइए, स्किन में देने से प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर एनी विटामिन इज टेकन, वो लिवर में जाके उसका फॉर्मेशन थोड़ा चेंज होता है ना, वो विटामिन डी हो, विटामिन ए हो, एवरीथिंग, उसका जो फॉर्मेशन है थोड़ा चेंज होता है, एंड देन इट बिकम्स फायदेमंद टू द बॉडी। बट ये जब डायरेक्टली स्किन में दोगे वो कन्वर्शन नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन दिस हैपेंस। बुझते पारो? तुम आपका जो क्वेश्चन था यही था ना कि स्किन में देने से ये होता है, और हाँ, लिवर में सबसे पहले उसका मेटाबॉलिज्म होके कुछ चेंजेस होते हैं उस विटामिन का स्ट्रक्चर में, एंड देयर आफ्टर इट इज बीइंग यूज्ड बाय द बॉडी। लेकिन डायरेक्टली अगर स्किन में दोगे तो वो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ, यही रीजन है। कोई भी विटामिन का है बेटा, कोई भी विटामिन, वेदर इट इज वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। आजकल बायोटिन कैप्सूल वेप्सूल्स वो सब भी यूज करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन दोज आर अल्टीमेटली दे आर हार्मफुल, लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल। हो गया? सो मिनॉक्सिडिल के लिए भी सेम ही मैकेनिज्म काम करते हैं, वो तो वैसोडाइलेटर, वो तो विटामिन नहीं है। हाँ, मोड ऑफ एक्शन से, मोड ऑफ एक्शन से। हो गया? तो अल्टीमेटली इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलडिहाइड। और मिथानॉल तो तुम जानो, इफ इट इज मिथानॉल देन अल्टीमेटली दैट इज स्पूडियस, है ना, बिकॉज उसमें नैप्थापिरिडिन ये सब कॉम्बिनेशन में रहता है, तो वो तो पॉइजनिंग होकर डेथ होता है। तो दैट अल्कोहल कंजम्पशन कभी कभी देखो 20 मौत खे मरे गए, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट आता है, मतलब न्यूज आता है ना, तो वो सब गलत चीज है। मतलब दैट इज मिथानॉल, उसमें नैप्थापिरिडिन ये सब रहता है, दैट मेक्स इट टॉक्सिक, ठीक है, तो उसमें इंस्टेंट डेथ हो जाता है। लेकिन हाँ, मैंने किया ना, इथेनॉल कॉजेज दिस थिंग्स। अच्छा, না না না, কিরে ক্যাটারপিলার, তো হাসছিস কেন? পরীক্ষা যা দিয়েছিস আমি দেখতেই পাচ্ছি। हाँ, अल्कोहल हो जाए, अल्कोहलिज्म खत्म हुआ ना कि अल्कोहल चलছে? अल्कोहलिज्म खत्म हुआ? जल्दी जल्दी खत्म कर। छोड़ो, हटाओ, समझ में आ गया, छेड़े दे। तू शुरू परेर पाताय जा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इफेक्ट मेल एंड फीमेल और विड्रॉयल सिम्टम का डेफिनेशन, ये दोनों याद कर। नेक्स्ट पेज में विड्रॉ ऊपर है, नेक्स्ट पेज में ऊपर है, विड्रॉयल सिम्टम देखो, बोल्ड किया हुआ है, वो पढ़ना है। और नेक्स्ट पेज जाइए, पेज पलटिए, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट के तरफ, सेकंड पैराग्राफ लास्ट के तरफ देखो, एनाबॉलिक, रोल ऑफ एनाबॉलिक, इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन मेल एंड फीमेल, ये याद करना है, ठीक है, इतना याद कर लीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चंस बना लीजिए जितने भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से, इवन भी इसका 100 क्वेश्चन शेयर कर देंगे, ठीक है, तो वो सॉल्व कर लेना और मॉड्यूल का क्वेश्चन निपटा देना तुरंत। आज जाके मॉड्यूल का क्वेश्चन निपटा पूरा, जितना भी हो सके। कल हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसको निपटाएंगे क्लास में, और उसके बाद थर्सडे से हम लोग शुरू कर देंगे बायोटेक। 8 दिन लगेगा, उसको निपटा देंगे, समझे ना। सिलेबस तो खत्म होने के कगार पे है। चलो, थैंक यू।